Hello everyone, I hope you guys are doing well. So this is the second class जहाँ पे हम chronology दोबारा से discuss करेंगे. And you have the first question in front of you. Arrange the publication of the following books in chronological order. So this is the question, and you have books like The Location of Culture, The Future of the Race, Black Literature and Literary Theory, The Signifying Monkey, A Theory of Afro-American Literary Criticism. Then you have the work Reconstructing Womanhood, The Emergence of the Afro-American Women Novelist. Okay, so these are the works and you need to tell me कि chronologically ये कैसे आप इन्हें set करोगे. So I hope you guys know that Black Literature and Literary Theory, ये जो वर्क है ये वर्क आपका 1984 में आता है and this is a work by William R. Sachelt. ओके, अ वेरी लेसर नोन वर्क, तो ये पता होना चाहिए आपको. अभी याद करना है आपको ये वाला वर्क. देन यू हैव रिकन्स्ट्रक्टिंग वुमेनहुड. रिकन्स्ट्रक्टिंग वुमेनहुड, दिस इज़ another important work and this work is coming out in the year, so you have Reconstructing Womanhood, The Emergence of Afro-American Women, and this work is coming out in 1987. 1987. And who wrote this work? This work is by Hazel Carby. After that, we have a very, very important work again, The Signifying Monkey. The Signifying Monkey is a work coming out in 1988 and it is by Henry Louis Gates Jr. Then you have the work The Location of Culture. The Location of Culture 1994 का वर्क है and I'm pretty sure you guys knew this. होमी के भाभा ने ये वर्क लिखा है. एंड देन वी हैव द फ्यूचर ऑफ द रेस, तो ये भी लेसर नोन वर्क है कमिंग आउट इन 1996, बट दिस इज़ अगेन रिटन बाय हेनरी लुइस. ये दोबारा से हेनरी लुइस गेट का ही वर्क है. ओके, सो राइट आंसर क्या हो गया? इट वुड बी डी वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ बहुत ज़्यादा बर्थ डेट से क्वेश्चन आने लगे हैं. अरेंज द फॉलोइंग राइटर्स क्रोनोलॉजिकली इन अकॉर्डेंस विद द ईयर्स ऑफ देयर बर्थ. James Boswell, Edward Gibbon, Samuel Johnson, Edmund Burke, and we have Richard Bensley Sheridan. So years क्या होंगे? And all of these writers are very important. You should know that Samuel Johnson जो है इनका बर्थ कुछ 1709 के पास होता है and he died 1784 में. Then Edmund Burke in 1729 till 1797. Then you have Gibbon, okay, 1737 till 1794. Then Boswell, very important for his biographies. And last में we have Sheridan, right? So can you set the chronological order? What would be the right answer? Right answer क्या होगा? सो सबसे पहले कौन आएंगे? सैम्यूल जॉनसन. सो सी कहाँ कहाँ आ सकता है? सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो इन्हें कट कर सकते हो. ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट वुड बी द राइट आंसर? नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा? सो देन वी हैव डी. सो डी, तो मतलब ए वुड बी द राइट आंसर. यू कैन लैंड योर सेल्फ ऑन द राइट आंसर. ए वुड बी द राइट आंसर हेयर. ओके. एंड सैम्यूल जॉनसन बाय फार इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. लेट अस टॉक मोर अबाउट सैम्यूल जॉनसन. ठीक है. सो सैम्यूल जॉनसन, आफ्टर उनके नाम के आगे आपने डॉक्टर लगा हुआ देखा होगा. ही इज़ अ वंडरफुल लिटरेरी क्रिटिक, ही इज़ अ बायोग्राफर, एडिटर, एंड नॉट ओनली दिस, ही इज़ अ लेक्सोग्राफर ऑल्सो. कौन थे? एक लेक्सोग्राफर भी थे. इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है The Oxford Dictionary of National Biography. So not exactly his work, you can say this dictionary calls him
द डिस्टिंग्विश मैन ऑफ लेटर्स, इस वर्क ने द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी ने इनको मैन ऑफ लेटर्स कहा है. ही इज़ कॉल्ड एज द मैन ऑफ लेटर्स दो ही हैज़ रिटन अ वर्क, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. ये इनका वर्क है, coming out in 1755, right? Almost all his works are very famous. He has contributed a number of works to the Gentleman's Magazine, and Rasselas इनका एक important work है. He has written number of critical works and especially on Shakespeare, जो इनका critical work है वो भी काफ़ी ज़्यादा important है. Literary criticism भी इनका important है. Okay, so you should know about Samuel Johnson. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर. ओके, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इनका एक वर्क है लाइव्स ऑफ द पोएट्स, एक एक्सेलेंट पीस ऑफ राइटिंग है ये. ही बिलीव दैट ही विल बी इनकॉर्पोरेटिंग अ लॉट ऑफ राइटर्स, लॉट ऑफ पोएट्स, और उन सबकी लाइव्स के बारे में बताएंगे. एंड बाकी सारे राइटर्स, बाकी सारे पोएट्स जो इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए थे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी थे. ओके, ही ऑल्सो टॉक्ड अ लॉट अबाउट मिल्टन, ग्रे, काउली, एंड इसी वाले वर्क के अंदर इन्होंने मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें बोली है एंड डिग्रेड ही किया था इन्होंने. उसके बाद टी.एस. एलियट के आने के बाद दोबारा से हम देख सकते हैं दैट मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स की रेप्यूटेशन ठीक हुई थी. अदरवाइज इन्होंने तो ख़राब उसे कर ही दी थी. ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड. अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्क्स वर पब्लिश्ड. नाउ दीज आर द फॉलोइंग वर्क्स दैट वर पब्लिश्ड. आपको सबसे पहले ईयर पता होना चाहिए और राइटर्स भी पता होने चाहिए. जेन आयर, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, मिडिल मार्च, द रिटर्न ऑफ द नेटिव एंड द न्यू कम्स. एंड वंस यू रीड द वर्क्स यू विल गेट टू नो दैट ये सारे कहाँ से एसोसिएटेड हैं, विक्टोरियन एरा से एसोसिएटेड हैं ये सारे वर्क्स. ऑल ऑफ दीज वर्क्स आर इंक्लूडेड इन द विक्टोरियन एरा. यहाँ पे क्वीन एन थी जो रूल कर रही थी. क्वीन एन वॉज रूलिंग. एंड ऑल्सो विक्टोरियन एरा के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है. सो दिस वॉज अ वेरी वेरी प्रॉस्परस पीरियड फॉर इंग्लैंड. ओके, सो जेन आयर, दिस इज़ अ वर्क रिटन बाय वन ऑफ अ ब्रिलियंट राइटर जो कि ब्रॉन्टे सिस्टर्स भी हैं हमारी. सो वी हैव शार्लेट ब्रॉन्टे. बर्था मेसन की स्टोरी है. रॉचेस्टर ने उनको अपने रूम में एटिक के अंदर बंद कर दिया था. सो मैड वुमेन इन द एटिक के नाम से उन्हें जाना जाता है. लास्ट में वी सी जेन आयर अगेन गोइंग बैक टू रॉचेस्टर एंड मैरिंग हिम. रीडर आई मैरिड हिम के साथ ये टेक्स्ट ख़त्म होता है. अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल, 1847 का वर्क है. अ टेल ऑफ टू सिटीज़, दिस इज़ अ नॉवल रिटन बाय नन अदर देन डिकिंस. सो चार्ल्स डिकिंस का ये वर्क है where he is talking about two cities, that is London, one of them is London and the next one is Paris. So London and Paris के बारे में बात कर रहे हैं. पर ये वर्क आता कब है, you should know the works written by Dickens in the chronological sequence 1859 में. Okay, then you have Middlemarch. This is a work written by George Eliot. George Eliot, a very important work. इसका डेट भी हमें पता है, it is 1875. The Return of the Native is by Thomas Hardy. We have already discussed the works of Hardy in the previous classes. It is 1878. Last में हमारे पास वर्क आता है The Newcomes and that is a work written by Thackeray. So William Makepeace Thackeray का वर्क है 1855 का. तो सबसे पहले वर्क कौन सा आया, जेन आयर. ए से स्टार्ट करेंगे. जेन आयर इज़ द राइट वर्क. सबसे पहले आएगा ए, सबसे पहले आना चाहिए, बाकी कट कर सकते हैं. आफ्टर दैट, आफ्टर जेन आयर वी हैव ई. सो बी राइट आंसर हो गया. ओके, सो बी इज़ द राइट आंसर. ओके, अब ये हमारे इंडियन राइटर्स हैं. कौन है, दीज आर द इंडियन राइटर्स एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, टू वर्जिन्स, द पेंटर ऑफ साइंस, शैडो फ्रॉम लद्दाख, अ बेंड इन द गेंजेस एंड टू whom she will. These are the works. Can you tell me who wrote these works and ये किस डेट में पब्लिश होते हैं. सो टू whom she will एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है और इसको आप, आई अर्ज यू टू स्टडी दिस वर्क एज वेल. दिस इज़ अ वर्क रिटन बाय रूथ प्रवार
रूथ प्रवार झाबवाला, है ना, तो झाबवाला का ये वर्क है, सो सॉरी, हाँ, सो ये झाबवाला का वर्क है. आफ्टर दिस वी हैव the next work, and this work got published in 1955. Okay, then we have the work A Bend in the Ganges, a very very interesting work. Please read this novel. 1964 का work है, written by Manohar Malgonkar. Then we have Shadow from Ladakh, 1966, by a very very important writer, Bhabani Bhattacharya. Then you have the work Two Virgins. Two Virgins 1973 का वर्क है, और ये लिखा है हमारी एक नॉवलिस्ट कमला मारकंड्या ने. तो कंफ्यूज मत होना, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ बिटवीन कमला मारकंड्या एंड कमला दास. कमला दास वॉज अ पोएट, है ना. सो कमला दास एक पोएट है, वो पोएट्री के लिए फेमस है, प्लस उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी. कन्फेशनल पोइट्री के लिए बहुत फेमस है कमला दास, जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, कमला सुरैया बन गई. ये हमारी कौन है, एक नॉवलिस्ट है. लास्ट में वी हैव द पेंटर ऑफ साइन. द पेंटर ऑफ साइन इज अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क, और ये किसका वर्क है, 1976 का वर्क है, बाय R.K. नारायण. ओके, सो राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या पब्लिश होता है, सो ई सबसे पहले आया 1955, है ना, तो वी हैव सी एज द राइट आंसर. ओके, सो यू हैव ई, देन डी, देन ए, देन सॉरी सी, देन ई, देन ए, देन बी. ओके, सो ई राइट आंसर हो गया. शुड वी गो फॉरवर्ड? ठीक है. What is the correct chronological sequence of the following text? The Advancement of Learning, An Apology for Poetry, The Uses of the Spectator, My Relations, How It Strikes a Contemporary. Now, all of these works are very important एक तो, और लेकिन सबको ये वाला वर्क डेफिनेटली पता है, An Apology for Poetry. एंड हम सिर्फ एक बार वर्क जो पता है, सिर्फ इससे ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी ऑल नो दैट इट इज़ फिलिप सिडनी, जिन्होंने पोइट्री के डिफेंड में, स्टीफन गुसॉन ने जब पोइट्री को ख़राब बोला, गलत बोला, तो एक वर्क लिखा, एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री. एंड वो लिख कब रहे थे, तो ये एलिजाबेथन एरा है. एलिजाबेथन एरा है तो 1595 के आसपास है, राइट. सो दिस मीन्स फिलिप सिडनी का वर्क सबसे पहले आना है. बी कहीं है, यस, बी इज़ द राइट आंसर. फिर भी इफ़ यू गाइज वांट टू नो, लेट अस डिस्कस फर्दर. द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी एक वर्क है जो बहुत बच्चों को पता है, पता होना चाहिए भी. फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने अपने एसेज लिखे एंड ही इज़ वेरी फेमस फॉर दैट, 1605. देन द यूजेस ऑफ स्पेक्टेटर, दिस इज़ अ वर्क कमिंग आउट इन 1711 एंड दिस इज़ बाय एडिसन, जोसेफ एडिसन. ओके. माई रिलेशंस, दिस इज़ बाय चार्ल्स लैम्ब. ये किसने लिखा है, चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है. एंड हाउ इट स्ट्राइक्स अ कंटेम्प्रेरी, ये वर्क तो बहुत बार हमने देखा है, जो रिपीट हो जाता है बिकॉज ये लेसर नोन वर्क है. किसका वर्क है, वर्जीनिया वुल्फ का. ओके, तो ये वर्क भी हमें पता होना चाहिए. ओके, मोस्टली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर होते हैं उनका लेसर नोन वर्क आता है, लेसर नोन राइटर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आता है. तो हमेशा इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट में चलता है. ओके, यू हैव द आंसर हियर, यू कैन रीड इट. ओके, आगे चलते हैं. What is the correct sequence of the following texts that are authored by Raymond Williams? अब हमारे वेलिश क्रिटिक हैं रेमंड विलियम, जो किसके लिए बहुत फेमस है, कल्चर स्टडीज़ के लिए. किसके लिए, कल्चर स्टडीज़ के लिए फेमस हैं. एक और चीज़ जिसके लिए ये बहुत फेमस है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कल्चरल मटीरियलिज्म. कल्चर मटीरियलिज्म जो कि बिल्कुल सेम है हमारे न्यू हिस्टोरिसिज्म की तरह. ये बोलते क्या हैं, दैट कल्चर जो है वो ओनली एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है. कल्चर इज़ नॉट ओनली एब्स्ट्रैक्ट. कल्चर बेसिकली is also incorporating Marxist philosophy and it is also driven by materialism.
सो मटेरियलिज्म मतलब यहाँ पे हेजीमनी का कॉन्सेप्ट भी लगता है. इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू. मटेरियलिस्टिक डील्स मतलब कल्चर ड्रिवन होता है सोसाइटी के साथ. सोसाइटी सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या कल्चर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता. ओके, इट इज़ वेरी सेम टू न्यू हिस्टोरिसिज्म. So the work The Long Revolution, Culture and Society, Marxism and Literature, Writing in Society, The Politics of Modernism, these are certain important works. जिसके अंदर we have The Culture and Society coming out in 1958, The Long Revolution 1961, Marxism and Literature 1977, Writing in Society 1983, and The Politics of Modernism 1989. So what would be the correct sequence? It would be B coming first. B तो कहीं और है भी नहीं. So it is B that is the right answer. So yeah, these are the works. Culture and Society 1958, The Long Revolution 1961, Marxism and Literature 1977, Writing in Society 1983, The Politics of Modernism 1989. ठीक, अब आ जाते एक बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है. सारे वर्क्स किसके हैं? हमारे जेन ऑस्टन के, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स. आई होप आप सब ने भी बहुत सारे वर्क्स पढ़े होंगे जेन ऑस्टन के. सो ये सारे वर्क्स हैं जिन्हें आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना है. नॉर्थएंगर एबे, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड मैन्सफील्ड पार्क. सो नॉर्थएंगर एबे, ओह सॉरी अबाउट दैट. नॉर्थएंगर एबे कब आता है? Northanger Abbey is a work coming in 1817, Pride and Prejudice in 1813, Sense and Sensibility. Pride and Prejudice तो डेफिनेटली सबका फेवरेट वर्क होगा. इसके अंदर एलिजाबेथ के साथ कौन है? डार्सी. और एलिजाबेथ को किससे प्यार होता है? डार्सी से या पेम्बरली से? सो आई थिंक उनको पेम्बरली से प्यार हो जाता है ना. देन वी हैव सेंस एंड सेंसिबिलिटी. ये वर्क कब आता है? इन 1811. एंड वी हैव मैन्सफील्ड पार्क लास्ट में 1814. तो क्रोनोलॉजी क्या होगा? सबसे पहले सेंस एंड सेंसिबिलिटी, देन प्राइड एंड प्रेजुडाइस, देन मैन्सफील्ड पार्क, फिर नॉर्थएंगर एबे. तो डी इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके. चलो अब ये बताओ. अब ये क्वेश्चन ना तो 2000 एंड आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है ये. अभी बहुत टाइम से हमने नहीं देखा शेक्सपियर क्रिटिसिज्म के बारे में कोई क्वेश्चन आया हो, बट पता तो डेफिनेटली होना चाहिए, है ना. सो ये ऑप्शंस हैं आपके पास एंड आई थिंक इस ऑप्शन में कुछ गड़बड़ भी थी, बट हम खुद से सॉल्व करेंगे. हम इस क्वेश्चन को अपने तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट द क्रिटिक्स दैट हैव रिटन अबाउट शेक्सपियर. लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन इन डिटेल. सबसे पहले वी हैव द राइटर A.C. ब्रैडली, है ना. A.C. ब्रैडली एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने वर्क लिखा है हमारा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. और ये वर्क कब आता है? 1904. ओके. आफ्टर दैट वी हैव T.S. एलियट. T.S. एलियट कब आता है? T.S. एलियट ने कौन सा वर्क लिखा है वैसे? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है. 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर के तरीके से याद कर सकते हो. देन यू हैव कैरोलाइन स्पर्जियन. दिस इज़ अ राइटर, क्रिटिक हैं शेक्सपियर की, जिन्होंने वर्क लिखा है शेक्सपियर्स इमेजरी. शेक्सपियर्स इमेजरी 1935. ओके. एंड देन लास्ट में सबसे ज़्यादा नोन तो यही हैं हमारे स्टीफन ग्रीन ब्लैट, लेकिन इनका लेसर नोन वर्क पूछा गया है ऑन पोएटिक्स ऑफ कल्चर एंड द इंटरप्रिटेशन of Shakespeare and the interpretation
Let me just write it for you. And the interpretation of शेक्सपियर. ठीक है, सो ये इनका वर्क है. कब आता है? 1987 में. ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले AC ब्रैडली का वर्क आता है, फिर TS एलियट. बट यहाँ पे कोई ऑर्डर ऐसा है ही नहीं, है ना. तो हमें इधर से हम याद कर लेंगे. सबसे पहले AC ब्रैडली, देन TS एलियट, देन कैरोलिन, देन वी हैव स्टीफन. ओके, सो आई थिंक इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस, बिकॉज डेफिनेटली ऑप्शंस में कोई ना कोई गलती थी. तो मे बी उस टाइम पे चैलेंज किया होगा सब ने, पर हमें क्या करना है, हमें तो चीज़ें सीखने से मतलब है. चलो, देन चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. यू हैव द क्लोजेट ड्रामा, एपिक थिएटर, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, एज वेल एज पोर्टेबल थिएटर. सो क्लोजेट ड्रामा कब स्टार्ट होता है? ये कुछ 18th सेंचुरी के पास बहुत फेमस हो जाता है. एपिक थिएटर कब होता है? 1924 से 27. थिएटर ऑफ एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड कब आ रहा है? 1940s, 42 टू बी एग्जैक्ट. एंड पोर्टेबल थिएटर लेट वर्क है, ये बहुत बहुत बाद में आता है, 1960s से 1970s के बीच में. ओके, तो दिस मीन्स दैट सबसे पहले आ रहा है हमारा क्लोजेट ड्रामा. ए ही राइट आंसर है. एपिक थिएटर, उसके बाद द थिएटर ऑफ एब्सर्ड. थिएटर ऑफ एब्सर्ड मार्टिन एस्लिन, देन यू हैव सैम्यूल बेकेट, ये सब इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं. एंड पोर्टेबल थिएटर. ओके, ठीक है. देन चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. यू हैव थॉमस नैश, बेन जॉनसन, किड एंड मार्लो. किड एंड मार्लो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में सेट करना है. सो किड ने ही उर हैमलेट लिखा है, जहाँ से फिर शेक्सपियर ने हैमलेट लिया है. एंड इनके और स्पैनिश ट्रेजेडी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. सो ही इज़ अ यूनिवर्सिटी विट, है ना. तो यूनिवर्सिटी विट हैं तो एलिजाबेथन एरा में आ रहे हैं, 94. वैसे तो मार्लो भी हमारे यूनिवर्सिटी विट ही हैं. ये कब लिख रहे हैं? 64 से 1593. थॉमस नैश 67 till 1601. एंड फिर आ गए हम सबके ही फेवरेट बेन जॉनसन, जिनकी डेट क्या है? 72 till 1637. सो सबसे पहले कौन से आ रहे हैं राइटर हमारे? वी हैव किड सबसे पहले. वी हैव थॉमस किड, तो सी सही आंसर होना चाहिए. थॉमस किड के बाद वी हैव मार्लो के बाद नैश एंड देन बेन जॉनसन. सो सी इज़ द राइट आंसर, isn't it? I hope you guys are clear with this. If you want, you can note this down. सो क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं. मार्लो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश राइटर. मार्लो एक यूनिवर्सिटी विट भी हैं एंड ही इज़ वेरी फेमस. ही इज़ एन एलिजाबेथन प्ले राइटर. ही हैज़ रिटन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. क्या है वो वर्क? टम्बरलेन. इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है टम्बरलेन. दो ही हैज़ ऑल्सो रिटन अदर वर्क्स जैसे हीरो एंड लिएंडर, देन टम्बरलेन द ग्रेट. Then we have Edward II. Then how can we not discuss Dr. Faustus, Dido, Queen of Carthage. ये भी इनका important work है. So almost all the works of Marlowe are very important. और Dido की डेट क्या है? 85 से 87 के बीच में. ओके, ऑफिशियली पब्लिश्ड ये हो गई थी, ये परफॉर्म हो रहा था इस टाइम पे, और ऑफिशियली पब्लिश्ड जो इसके बारे में आपको पता है वो ये डेट है. ठीक है. देन यू हैव टम्बरलेन एक्चुअली पार्ट्स में पब्लिश हुआ था. सो पार्ट 1 पब्लिश होता है 1587 के अंदर, और पार्ट 2 होता है 88 तक. ठीक है. सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट. देन इनका एक और वर्क है, द ज्यू ऑफ माल्टा. ये भी पता होना चाहिए, द ज्यू ऑफ माल्टा.
ऑफिशियली रिकॉर्डेड जो है 1592 के आसपास ये पब्लिश हुआ था. डॉक्टर फॉस्टर्स कब हुआ था? डॉक्टर फॉस्टर्स फर्स्ट publication 1601. Okay. Then Edward II, first published in 1590. Okay. So these are some of the important works that are written by him. Okay, I hope you guys have written this. Then let us talk about a little bit about Ben Jonson. दो उनके बारे में तुम पूरा दिन बात कर सकते हैं. He is such an important writer. So Ben Jonson is not only famous for his plays, but he is also very famous for his mask. Jacobean era में लिख रहे हैं ये. Jacobean era when King James is ruling and he is a very very say self-centered king. तो इनके सारे writings भी बहुत ज़्यादा rude और इस तरीके से dark humor के तरीके से आपको दिखाए जाते हैं. He is best known for his satirical work Every Man in his humor. Every Man in his humor. Right. So this work came out in 1598. Then we have Volpone or The Fox in 1606. Then The Alchemist 1610. Then we have Bartholomew Fair 1614. And he has also written lyrics and epigrams. And you know he is also very very famous because इनकी वजह से वॉर ऑफ थिएटर भी होता है. सो इंग्लैंड में वॉर ऑफ रोजेज ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, वॉर ऑफ थिएटर भी है जिसके अंदर हमारे डेकर और कौन कौन है, मास्टन एंड बेन जॉनसन, ये तीनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया है. ओके, सो वॉर ऑफ थिएटर के साथ भी ही इज़ एसोसिएटेड. देन हिज कॉमेडीज़ वर नॉट ऑलवेज वेरी वेरी फेमस. हमेशा इनकी कॉमेडीज़ तो फेमस नहीं थी. एंड बेन जॉनसन के और भी वर्क्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे वी हैव अ टेल ऑफ अ टब. दिस इज़ हिज फर्स्ट वर्क जो कि परफॉर्म किया जाता है 1633 में. इट वॉज प्रिंटेड इन 1640. देन देयर इज़ दिस वर्क द आइल ऑफ डॉग्स. दिस इज़ अ वर्क दैट ही हैज़ रिटन विद थॉमस नैश एंड ही वेंट जेल फॉर दिस. तो कई बार हमारे बेन जॉनसन जेल जाते हैं. बहुत ही कह सकते हो आप रंगीन किस्म का इनका लाइफ थी. काफ़ी बार जेल जाते हैं, सारे उल्टे फुल्टे काम करते हैं हमारे बेन जॉनसन. लेकिन हमें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के अंदर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स के साथ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी भी देके जाते हैं, है ना. सो कॉमेडी ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के अंदर इन्होंने ह्यूमर्स की कॉमेडी के बारे में बात किया है. नाउ व्हाट इज़ दिस? डू यू गाइज नो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है? सो लेट मी राइट इट हेयर. सो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेसिकली एक जॉनरा बन जाता है, एक ड्रामेटिक कॉमेडी का, जहाँ पे स्ट्रेंज करेक्टर्स एग्जिबिट किए जाते हैं एंड हर स्ट्रेंज करेक्टर के पास एक स्ट्रेंज ट्रेट होता है एंड दैट ट्रेट इज़ बिकॉज ऑफ अ फ्लूइड जिसे हमने कह दिया है क्या है, वो ह्यूमर है. राइट. दिस इज़ अ टेक्निक. सो इट इज़ अ कॉमिक टेक्निक जो बेन जॉनसन ने स्टार्ट तो नहीं की थी लेकिन उसे प्रोपगेट आगे ज़रूर किया. So it is Aristophanes, that was an English that was a poet and a comic playwriter. उनके थ्रू यहाँ पे बेन जॉनसन ये सीखते हैं. ठीक है. सो इंग्लिश प्ले राइटर्स बेन जॉनसन एज वेल एज चैपमैन. सो बेन प्लस चैपमैन दोनों कहाँ से सीखते हैं? एरिस्टोफेनीस से. 2024 के पेपर में यही क्वेश्चन आ गया था. सो यू शुड नो about comedy of manners and the humors they were talking about. Right. So ये सारी चीज़ें बहुत important हैं and ये सारे works भी काफ़ी ज़्यादा important है बेन जॉनसन के. I hope you guys will write this. बेन जॉनसन आप कितना भी पढ़ लो उतना कम है. ठीक है. There are works जैसे Every Man in his humor है. There is this work Every Man out of his humor also. Every Man
आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये कब आता है? 1599. देन वी हैव द वर्क सिंथियाज रिवील्स in 1600. द पोएस्टर, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्क. एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क पेपर में बहुत बार आता है इज़ एपिकोने. एपिकोने और द साइलेंट वुमेन, और द साइलेंट वुमेन. प्लीज़ रीड दिस वर्क. 1609 में परफॉर्म होता है, बट ये प्रिंट कब होता है? 1616 में. 1616 में प्रिंट किया जाता है. एंड द एल्केमिस्ट, ये तो सबको पता ही है. द एल्केमिस्ट, इट वॉज प्रिंटेड इन 1612. ओके. इनके लास्ट के कुछ वर्क्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे, उनको हम क्या बोल देते हैं? डॉटेजेस. उन्हें हम क्या बोलते हैं? डॉटेजेस. तो एंड के जो बेन जॉनसन के वर्क है उन्हें हम डॉटेजेस बोलते हैं. इनके अंदर एक वर्क आता है जो पेपर में भी आया हुआ है आपका, डेवल इज़ एन एस. डेवल इज़ एन एस. देयर इज़ वन मोर वर्क, द स्टेपल ऑफ न्यूज़. द स्टेपल ऑफ न्यूज़ एंड द न्यू इन. तो एटलीस्ट ये दोनों आप याद रखना, ये दोनों डॉटेजेस कहलाते हैं जो बिल्कुल फेमस नहीं हुए थे, एंड के वर्क्स हैं. लेट्स गो फॉरवर्ड. ओके, नाउ दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में सेट करना है. द वेल रॉट अर्न, द वर्बल आइकन, थ्योरी ऑफ लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन. सो ये सारे हमारे क्रिटिकली वर्क्स हैं, थ्योरी से रिलेटेड वर्क्स हैं. एंड कौन सा वर्क कब आता है? So let me show you the answers first. So the well-wrought urn, this is a work, the full title is Studies in the Structure of Poetry. This is a work written by Kenneth Brooks, coming out in 1947. The verbal icon. The verbal icon is also going to talk about the meaning of poetry. So the full title is The Studies in the Meaning of Poetry. It was published in 1954. रिटन बाय विलियम के विमसेट. और यहीं पर ही वो दोनों फैलेसीज के बारे में भी बात करते हैं ब्रेड्सली के साथ. देन यू हैव थ्योरी ऑफ पोइट्री. दिस इज़ अ बुक अबाउट लिटरेरी स्कॉलरशिप. दिस इज़ अ बुक ऑन लिटरेरी स्कॉलरशिप बाय रेने वेल्के in 1948, and literary theory and introduction by Terry Eggleton. So after Rene Welk, this work was published in 1983. तो आपका क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में सेट करोगे तो बी वुड बी द राइट आंसर. सबसे पहले हमारा वर्क आता है द वेल रॉट अर्न. द वेल रॉट अर्न. देन आफ्टर दैट यू हैव the theory of literature. Theory of literature. Then you have the verbal icon, and last में you have literary theory. So B. Okay. ठीक है. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. यहाँ आपको क्रोनोलॉजिकल सेट करना है नोबेल प्राइज विनर्स ऑफ लिटरेचर. सो यू हैव सीमा सेनी, T.S. Eliot, Nadine Gordimer and Yeats, W.B. Yeats. सो कब कब किसको नोबेल प्राइज़ मिला है? W.B. Yeats got the Nobel Prize in 1923. T.S. Eliot got it when? We discussed it I think in the previous class as well. 1948 के अंदर. नदीन गॉदिमर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1991. एंड सीमा सेनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश पोएट, 1995. तो राइट आंसर हो गया बी. सबसे पहले किसको मिला? यीट्स को मिला, उसके बाद एलियट को मिला है, फिर नदीन गॉदिमर को मिला है, और उसके बाद सीमा सेनी. सो ऑप्शन क्या हो गया? बी. ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर. नाउ दिस इज़ योर होमवर्क. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है. चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. कमला दास, सरोजनी नायडू, तोरू दत्त, मीना अलेक्जेंडर, ये सारे कौन हैं? हमारी इंडियन पोएट्स हैं. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व दिस एंड कम in the next class. We'll be discussing it in detail, right? So I hope you guys liked the video. You guys thought that this was informative.
Okay, we'll be solving more and more questions related to chronology. So, till then, thank you and have a wonderful day and keep smiling.